चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र साक्षात् जगन्नाथ शङ्खचक्रगदा जन्तूनां दर्शनाय यो ददाति कृपाम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरङ्गसे नित्यानन्द जगद्गुरुभ्यः कलौ कल्मषनाशाय जह्नवापते कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय Canto 1, Chapter 2, Verse number 13. अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्
अतः कुम्भीरद्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् संसिद्धिर्हरितोषणम्। The translation of Bhagavad Gita. O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of Godhead. Human society all over the world is divided into 4 castes and 4 orders of life. The 4 castes are the intelligent caste, the martial caste, and the productive caste, and the laborer caste. These castes are classified in terms of one's work and qualification and not by birth. Then again there are 4 orders of life, namely the student life, the householder's life, and the retired and the devotional life. In the best interest of human society, there must be such divisions of life, otherwise no social institution can grow in a healthy state. And in each and every one of the above mentioned divisions of life, the aim must be to please the supreme authority of the personality of Godhead. This institutional function of human society is known as the system of Varnashram Dharma, which is quite natural for the civilized life. The Varnashram institution is constructed to enable one to realize the absolute truth. It is not for artificial domination of one division over another. When the aim of life, example, realization of the absolute truth, is missed by too much attachment of indriya priti or sense gratification, as already discussed herein before, the institution of the Varnashram is utilized by selfish men to pose an artificial predominance over the weaker section. In this Kali Yuga or in age of quarrel, this artificial predominance is already current, but the Sena section of the people know it well that the divisions of caste and orders of life are meant for smooth social intercourse and high-thinking self-realization and not for any other purpose. Herein, the statement of Bhagavatam is the highest aim, is that the highest aim of life or the highest perfection of the institution of the Varnashram Dharma is to cooperate jointly for the satisfaction of the Supreme Lord. This is also confirmed in Bhagavad Gita. भगवद गीता से हम लोग जानते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है तो श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में ही जहाँ से श्रीमद् भागवतम सूत गोस्वामी जी ने कहना शुरू किया, स्कंद 1 कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 6, वे कहते हैं कि सावै पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक के अप्रतिहृता ययात्मा सुप्रशीलते। आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा को कैसे आनंद मिलता है, ये उन्होंने बताया। कहते हैं कि सावै पुंसा परो धर्मो, परम धर्म। सावै पुंसा सभी लोगों के लिए क्या है, क्या है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। तो एक तरह से प्रारंभ में ही कंक्लूजन बता दिया। प्रारंभिक श्लोक में ही सूत गोस्वामी जी ने कंक्लूजन बता दिया। पूरे वर्णाश्रम को जानने के बाद दैवी वर्णाश्रम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं और हम लोग बारंबार भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, आप हमें अपने भक्तों का भक्त बनाइए। हम लोग कहते हैं ना कि ना हम विप्रो ना च नरपतिर ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रद्योन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपिर भक्तो पद कमलोर दास दास दास। जब आप लोग अपनी पूजा समाप्त करें तो उसके बाद ये मंत्र कहना चाहिए। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि
आपकी इच्छानुसार मैं वर्णाश्रम के अनुसार एक कार्य तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब में कुछ भी नहीं हूँ। और यदि देखा भी जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनकी यदि क्वालिटीज़ को देखा जाए तो शायद ही हमारे अंदर कोई एक क्वालिटी मिलेगी, और वो भी बहुत कम। जो क्वालिटी होगी वो भी बहुत कम होगी। तो प्रथम श्लोक में ही सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों, कहते हैं कि सावई पुंसा, सारी मानव जाति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोब के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, सावई पुंसा परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है कि वह क्या करे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे, है ना। अहेतुक के अप्रतिहृता भगवान की भक्ति करे। अब इसी अहेतुक अप्रतिहृता को उन्होंने पूरे भागवतम में समझाया है। सबसे पहले 8वें श्लोक में वो इस तरह से कहते हैं कि धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वयः नोत्पाद्येद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। यहाँ पर ये बताते हैं कि धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम, मनुष्यों के 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है स्वधर्म और एक होता है परोधर्म। हम सबके 2 धर्म हैं, 2 प्रकार के धर्म हैं। एक होता है स्वधर्म और दूसरा होता है परम धर्म। तो स्वधर्म क्या है? हमें एक कैटेगरी में रखा गया है हमारे गुणों के अनुसार। या तो हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, या फिर समाज को चलाने के लिए क्या 4 बनाए गए हैं? वर्ण बनाए गए हैं। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? आप लोग कोई बताइए, 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ये 4 वर्ण बनाए गए हैं समाज की व्यवस्था को ठीक ठीक से चलाने के लिए। लेकिन स्वधर्म का पालन करते करते कैसे हमें अपने नित्य धर्म को, परम धर्म को प्राप्त करना है, ये भी पूरी भागवतम में या पूरी भगवद गीता में यही बताया गया है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई अपने धर्म का पालन करता है लेकिन विश्वक्सेन कथा सूयः, अपने द्वारा, हमारे द्वारा जो प्राप्त वृत्तियां हैं, इन 4 आश्रमों में से एक आश्रम में या 4 वर्णों में से एक वर्ण में रहते हुए यदि भगवान के प्रति आसक्ति ना हो और भगवान की कथा के प्रति आसक्ति ना हो, तो श्रम एव ही केवलम, तो केवल वह वृथा श्रम है और कुछ नहीं है। हमने कुछ दिन पहले हम इसी की तैयारी कर रहे थे, तो हमने एक पुराना अपना वीडियो एक अपलोड किया था कि एक कीड़ा होता है जिस कीड़े का नाम है गोबरेला, गोबर का कीड़ा होता है। तो गोबर का कीड़ा क्या करता है, वो अपने लिए, उसको गोबर बहुत अच्छा लगता है, गोबर बहुत पसंद है, तो वो गोबर को रोल करता है, गोबर को अपने बिल में लेकर जाना चाहता है। लेकिन आसक्ति के कारण वो जितनी बार प्रयास करता है वो बड़ा गोला बना लेता है, फिर ढकेल ढकेल के बहुत मुश्किल से अपने बिल तक लेकर जाता है, लेकिन वो गोला जो है उसके बिल के अंदर घुसता नहीं है, जाता नहीं है, आसक्ति के कारण। तो इन वर्णों में रहकर, आश्रमों में रहकर यदि हम भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, भगवान की कथा के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, यदि हमारा अटैचमेंट नहीं है भगवान की कथा से, तो श्रम एव ही केवलम, जिस प्रकार से वो गोबरेला कीड़ा मेहनत करता है लेकिन उसको कोई फल नहीं मिलता है, तो उसी प्रकार से सारा जीवन हम लोग व्यथा श्रम करेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात को थोड़ा पॉजिटिव वे में आगे बताते हैं। 13वें श्लोक में, जो श्लोक आपने दोहराया तो उस श्लोक में बताते हैं कि पॉजिटिव तरीके से बताते हैं कि अतः कुंभिर ध्वजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष। पहले नेगेटिव बता दिए, उसके बाद पॉजिटिव रूप में बताते हैं कि इसीलिए
पुम का अर्थ होता है मनुष्य, पुम्भिर, पुमान वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पुम्भिर। तो इसीलिए मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के द्वारा वर्णाश्रम को पालन करके, वर्णाश्रम विभाग सह, हे द्विज श्रेष्ठों, वर्णाश्रम का विभाजन किया गया है। तो मनुष्यों द्वारा जब इसका पालन किया जाता है, तो जब अच्छे से पालन इसका किया जाए तो क्या होना चाहिए? संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो वर्णाश्रम विभाग सा ये है स्वधर्म, और नीचे की लाइन संसिद्धिर हरितोषणम वो है परोधर्म। तो जीव का यही कर्तव्य है और यही एकमात्र तत्व है, यही एकमात्र तत्व है। तो आपसे तत्व बनता है। तो हमारे गुरु महाराज हिस्सोली में राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत बढ़िया तत्व को समझने के लिए। महाराज बताते हैं कि बहुत पहले हमने ये महाराज के मुख से सुना था, लेकिन इसको हमने बढ़िया से लिख लिया था। तो ये हमेशा याद आता है, जहाँ भी कहीं हमें तत्व शब्द दिखाई देता है तो हमें ये उदाहरण उनका याद आता है। तो महाराज कहते हैं कि एक मायावादी सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी थे जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। वो मायावादियों के बहुत बड़े गुरु थे। ये हमने पहले कई बार ऑकलैंड में बताया होगा कि मायावादियों के गुरु थे, मायावाद का प्रचार करते थे, अद्वैतवाद का प्रचार करते थे। तो एक बार किसी तरह से वो मायावाद का प्रचार करते करते वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन पहुंचे और भगवान ने ऐसी कृपा की कि भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिखा दिया। वृंदावन यद्यपि थे मायावादी, वृंदावन यदि कोई पहुंचता है तो वो राधा रानी की कृपा से पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तब पहुंचता है। तो बहुत बड़े गुरु थे, पहुंच गए, भगवान ने कृपा करी तो भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिखा दिया। तो जैसे ही भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया तो वो नाचते रहते थे, बस गाते रहते थे। एक मायावादी सन्यासी नाचे और गाए, ये तो आश्चर्य की बात। तो नाचते रहते थे, गाते रहते थे, नाचते रहते थे। एक बार वो वापस पहुंचे काशी, मायावादियों की नगरी में। तो वहाँ उनके कुछ बड़े बड़े शिष्यों ने, उनके सारे शिष्य परेशान थे, तो उनके बड़े बड़े शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, तत्व क्या है? ये भाषा होती है बड़े बड़े विद्वानों की, कहते हैं कि महाराज तत्व क्या है? तो उसका उत्तर वो देते हैं। अभी तक नाचते रहते थे, गाते रहते थे, उन्होंने उत्तर, प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया। कहते हैं, वंशे विभूषित करात नवनीर दाभा, पीतांबरात अरुण बिंब फलाधिरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात, कृष्णात परम तत्व किमपि अहम न जाने। क्या कहते हैं कि वंशी विभूषित करात, जो अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, उनके अतिरिक्त और मैं किसी तत्व को नहीं जानता। तत्व क्या है? तो जो अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, बांसुरी कौन धारण करता है? कृष्ण। तो उनके अतिरिक्त हम किसी तत्व को नहीं जानते। नवनीर दाभा, और जिनका रंग कैसा है, जिनकी त्वचा कैसी है? नए नए बादलों के समान श्यामल है, लाइट ब्लू कलर के। उनके अलावा और कोई मैं परम तत्व नहीं जानता। पीतांबरात, और भगवान का अंबर कैसा है? भगवान कैसा अंबर धारण करते हैं, कैसा भगवान वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबरात। क्यों धारण करते हैं पीतांबरात? राधा रानी भी तो नीले रंग की साड़ी पहनती है ना। तो कृष्णा भी राधा रानी की याद करते हैं, तो राधा रानी की याद करके वो भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबरात।
अरुण बिंब फलाधिरुष्ठात्, और जिनके होंठ कैसे हैं, भगवान के होंठ कैसे हैं, एक बिंब फल पाया जाता है इंडिया में, आप सर्च कीजिएगा कभी गूगल में, अभी नहीं बाद में, बिंब फल, तो वो आपको दिखाई देगा, लाल लाल रंग का दिखाई देगा। तो वैसे भगवान के अरुण बिंब फलाधिरुष्ठात्, भगवान के अधर लाल लाल हैं बिंब फल की भांति। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, और जैसा आपने गौर पूर्णिमा के दिन सुना था कि भगवान पूर्ण चंद्रमा है। अब इस चंद्रमा को राहु ग्रस लिया, क्या फर्क पड़ता है, पूर्ण चंद्रमा उदय हुए, गौरंग महाप्रभु आए, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंद भी पूर्ण चंद्रमा के समान है। अरे इस चंद्रमा में तो थोड़ा काला दाग है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो तो पूर्ण स्वच्छ चंद्रमा है। अरविंद नेत्रा, तो भगवान के नेत्र कैसे हैं? जब गुरु महाराज ये वर्णन करते हैं तो हम लोग महाराज की आंखों को देखते हैं। महाराज की आंखें भी ऐसे ही हैं, अरविंद, कमल दल के समान। तो उसी तरह से भगवान की आंखें कैसी हैं? कमल दल के समान भगवान की बहुत सुंदर आंखें, अरविंद नेत्रात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम तत्व किमपि अहम न जाने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई मैं दूसरा तत्व नहीं जानता। ये कहा मधुसूदन सरस्वती, मायावादियों के गुरु ने ये उत्तर दिया। तो तत्व क्या है? इसके पहले एक श्लोक आया है कि वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सम्यते। तो अद्वयम, अद्वय का अर्थ क्या होता है? अद्वय का अर्थ है नंद नंदन कृष्ण। अद्वयम यहाँ पे आया है कि यज ज्ञानम अद्वयम। तो महाराज श्री इसका अर्थ बताते हैं, अद्वय ज्ञान का अर्थ है कि ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वही एक तत्व है। अभी उनको ही कोई ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उनको ही कोई परमात्मा के नाम से जानते हैं, और उनको ही कोई भगवान के नाम से जानते हैं। तो जो भक्तगण हैं वो उनको भगवान के नाम से जानते हैं। तो हमने सुना कि अतः, इसीलिए, कोई उनको ब्रह्म के नाम से जानता है, कोई परमात्मा के नाम से, कोई कृष्ण के नाम से जानता है। अतः, इसीलिए, देयरफॉर, ऐसा कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, पुंबिर ध्वजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग। इसीलिए मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम का पालन करके, कभी कभी कोई इसका ट्रांसलेशन करता है इसलिए मनुष्यों के द्वारा वर्णाश्रम विभाग बना दिया गया है, लेकिन ये मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया? 4.13 में लिखा हुआ है। 4.13 क्या है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। भगवान कहते हैं कि ये किसने रचना की है इसकी? चलिए आज आपको ये बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक के दार्शनिकवाद का खंडन करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। आप लोग सबको स्कूल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी डार्विन ने। उस बुक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये उस बुक का नाम था। और ये बुक पब्लिश्ड हुई थी 1859 में। और इस बुक में उन्होंने लिखा है कि लगभग 200,000 ईयर्स पहले, कितना पहले? 200,000 ईयर्स पहले मनुष्य बंदर से आए। पहले हम लोग जानवर थे और बाद में फिर हम लोग क्या हो गए? धीरे धीरे मनुष्य हो गए। कितने साल पहले? 200,000 ईयर्स पहले। देखिए अब इसका खंडन करते हैं। चलिए, तो भगवान 4.13 में क्या कहते हैं? चातुर्वर्णम
मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारपि माम विद्ध कर्तारम अव्ययम्। नीचे की लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान के द्वारा ये बनाया गया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने नीचे वर्ग के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए इन वर्णों की और इन आश्रमों की रचना कर दी है ना। ब्राह्मण हैं वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे, दूसरों को डोमिनेट करेंगे। तो क्षत्रिय हैं वो दूसरों को डोमिनेट करेंगे। हो सकता है कि ऐसा किया जाने लगा था, लेकिन ये रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है। ये रचना किसने की है? चातुर्वर्ण की। इसके सृष्टा कौन है? भगवान है। भगवान क्या कहते हैं? मया सृष्टम। याद रखिएगा कि भगवान ने 4 वर्णों की और 4 आश्रमों की रचना की है। लेकिन भगवान उसके जनक होने के बाद भी तस्य कर्तारपि माम, भगवान उसके जनक है लेकिन फिर भी विद्धि कर्तार होते हैं। ये जान लो कि भगवान फिर भी अकर्ता रहते हैं, भगवान फिर भी अद्वय है। तो ये बात भगवान ने कब कही? 5160 वर्ष पूर्व कही। इस गीता जयंती में कितने वर्ष हो जाएंगे गीता कहे हुए? 5160 ईयर्स हो जाएंगे। फिर भी अभी दिल्ली दूर है। कहाँ 200,000 ईयर्स और कहाँ भगवान ने कब कही है भगवद गीता? तो भगवान तो 5160 वर्ष पहले कहते हैं कि मैंने रचना की है ना। लेकिन भगवान भगवद गीता के 4.1 में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्व कवियंत्र। कहते हैं कि भगवान ने यही भगवत गीता का ध्यान पहले किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव जी का नाम क्या है? विवस्वान है। ये सब पोस्ट हैं। इंद्र एक पोस्ट है, विवस्वान ये नाम है, लेकिन सूर्यदेव में, सूर्यलोक में विवस्वान रहते हैं। ठीक है, एक राजा रहते हैं विवस्वान। अभी इंद्र कौन है? पुरंदर है। लेकिन अगले मनवंतर में इंद्र कौन बनेंगे? बलि महाराज बन जाएंगे। तो इंद्र केवल एक पोस्ट है। तो विश्वान मनवे प्रा है। और विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन फिर क्या हुआ 4.2 में? बताइए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंपरा। धीरे धीरे नष्ट हो गई। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? इसीलिए अर्जुन सा एवायम मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम्। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? Who knows the translation? सा एवायम मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम्। Last का 2 कविता। हाँ, 2 कविताएं। This knowledge can be understood by you because you are non-envious and you are my dear friend. Good. अब पहले का दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन हो गया। पहले का सा एवायम मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुराणतः। योगः प्रोक्तः पुराणतः। मैं वही योग पद्धति जो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, प्रोक्तः वह मैं तुमसे बता रहा हूँ। सा एवायम इसीलिए क्योंकि ये कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। अब सुनिए, कलयुग की आयु के अभी कितने वर्ष बीते हैं? 5124 ईयर्स। भगवद गीता कब सुनाई गई थी? 60। तो पहले बताया वो भगवद गीता उतने समय पहले, तब कलयुग शुरू नहीं हुआ था। द्वापर युग के अंत में भगवद गीता सुनाई गई थी। लेकिन कलयुग के अभी कितने वर्ष हो चुके हैं? 5124 ईयर्स हो चुके हैं। तो कलयुग कितने वर्ष का होता है? 4,32,000 साल का होता है, 432,000 ईयर्स। द्वापर युग तो उसकी कितने ईयर्स का होता है?
हम बहुत सरल चीज आपको बताते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा। कलयुग को डबल कर दीजिए तो वो द्वापर युग है। डबल कर दीजिए, 432,000 ईयर्स को डबल करेंगे तो कितना होगा? 864। तो ये क्या है? द्वापर युग। अब इसमें वापस जोड़ दीजिए 432,000 तो त्रेता युग की आयु कितना हो गया? हाँ जी, 1,296,000, ठीक है। और उसमें वापस जोड़िए फिर से कितना जोड़ना है? 432,000। क्यों जोड़ना है 432,000? किसकी आयु थी वो? तो कलयुग की आयु है 1.7 मिलियन और 28,000, है ना? 1.728. हाँ, 1.728। तो मोटा मोटी एक अनुमान लगाइए कि सूर्य देव जी ने विवस्वान को ये कब सुनाई थी भगवत गीता। सूर्य देव जी ने विवस्वान को भगवत गीता कब सुनाई थी? तो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले। 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये भगवत गीता सुनाई थी। और इसके बाद भगवान ने ये सूर्यदेव को सुनाई और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई थी 20,05,000 वर्ष पहले। 20,05,000, 2,05,000 ईयर्स पहले सुनाई थी। उसके बाद ये 20 लाख वर्षों तक रही इस संसार में। लेकिन उसके बाद एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुम सकाले ने महता योगो नष्टः परम। तो यदि हम ये भी देखें कि मनु ने इक्ष्वाकु को कब सुनाई थी, तो कब सुनाई थी? क्या सुना आपने? 20,05,000 वर्ष पहले। और ये आज का जानवर कहता है कि मनुष्य बंदर से कितने समय पहले आया है? कोई एक ऐसा नंबर बता दो कि लोग वहां तक जा ही ना सकें। लेकिन देखिए हमारा शास्त्र कितना महान है कि वहां तो पूरा कैलकुलेशन दिया है। तो बताइए कि तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि डार्विन नाम का व्यक्ति जरूर बंदर से आया होगा। जरूर बंदर से आया होगा। तो इसका चैप्टर क्लोज आज से, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता देना ये, ठीक है। तो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वर्णाश्रम विभागसा, ये किसने बनाए हैं वर्णाश्रम? भगवान ने बनाए हैं। तो अब देखिए स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को 16 उपचार की विधि समझाते हैं। क्या समझाते हैं? 16 उपचार की विधि। तो उसमें से 8वें उपचार को समझाते हुए कहते हैं, 8वां उपचार क्या है? आभरण, वस्त्र। भगवान का हम उपचार करते हैं। जब भगवान की पूजा करते हैं आप लोगों के घर में भी तो उपचार करते हैं, 16 उपचार। भगवान को नहलाना, भगवान को फ्लावर्स देना, है ना, भगवान को जनेऊ देना। तो 8वां उपचार क्या है? आभरण, वस्त्र पहनाना। तो 8वें उपचार को समझाते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेद भवेद द्विज वेदे पठेत भवेत विप्रो और ब्रह्म जानेते ब्राह्मण। तो ये किसने बोला है? ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं। यदि भगवान के द्वारा ये बनाया गया है वर्ण और आश्रम, तो किस आधार पे बनाया गया है? चाहे भगवत गीता हो और चाहे भागवतम हो, आप पढ़ लीजिए कि गुण कर्म विभाग सह, है ना। इसी बात को भगवान ने दोबारा 18वें अध्याय में कहा है, 18.41 में दोबारा कहा है, गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्मों के हिसाब से ये चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, कि कैसे व्यक्ति के गुण हैं, कैसे व्यक्ति के कर्म हैं, उसके आधार पर रखा जाता है। लेकिन पहले के समय में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो तपस्या के प्रभाव से वो संस्कार उनके बच्चों में आ जाते थे।
इतने लंबे समय तक वो तपस्या करते थे कि अपने आप जन्म से ही उनके बच्चों में वो संस्कार आ जाते थे। जैसे कर्ण किसके घर में पला था? सूत पुत्र के घर में, सूत के घर में पला था, तो सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन है किनके? सूर्य पुत्र है। तो संस्कार देखिए आगे। 5 पांडव ये सब जंगल में जन्म लिए, लेकिन उसके बाद जन्म से ही भीम एक पत्थर में गिरा और वो पत्थर चकनाचूर हो गया। जानते हैं ना आप लोग कि जैसे ही भीम का जन्म हुआ, कुंती महारानी अपने हाथों में पकड़े हुए थे और उसी समय एक भयानक लायन एक आ गया, सिंह, और जोर से दहाड़ मारी सिंह ने। तो माता डर गई और कुंती के हाथ से वो एक पत्थर में गिर गए। कौन गिर गए? भीम गिर गए। तो पत्थर चकनाचूर हो गया, पत्थर टूट गया। तो जन्म से ही ये संस्कार पहले आ जाते थे, लेकिन क्योंकि कालांतर में धीरे धीरे लोग तपस्या करना छोड़ दिए, लोगों में आध्यात्मिक गुण नहीं है, स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है, तो इसीलिए जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि शूद्र भी नहीं, शूद्र भी नहीं, क्योंकि अभी हम आपको शूद्र के गुण बताएंगे कि शूद्र के गुण होते क्या हैं, है ना। जब भी हमें गुणों का वर्णन करना होता है तो केवल हम शूद्र के गुणों का वर्णन कर देते हैं, समझ जाए। ब्राह्मणों के गुण का कहाँ वर्णन करें, शूद्र के गुण का वर्णन कर देते हैं। यदि वही आ जाए अगर हमारे अंदर, शूद्र के गुण भी आ जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। तो 18.41 में बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः, कि मनुष्यों के गुणों के आधार पे उनको एक श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे हम लोग सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह वर्णाश्रम का वर्णन है। 7वें स्कंद में भी है, 11वें स्कंद में भी है। तो यदि भगवद गीता में आप पढ़ना चाहते हैं वर्णाश्रम, तो 18वें अध्याय के वर्ष नंबर 42 से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुणों का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के वर्ष नंबर 21 से क्रम से शुरू होता है। 21, 22, 23, 24 और आगे के अध्याय में भी, 12वें अध्याय में भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का वर्णन है। और इसके अलावा 11.17.16 11वां स्कंद 17वां अध्याय और 16 श्लोक से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का वर्णन होता है। तो हम ये पूरे तो वर्णन नहीं कर सकते हैं कि सब सारे श्लोकों की व्याख्या, हमारे पास लिखे हैं सारे श्लोक यहाँ पर, लेकिन हम कुछ एक श्लोक आपको सुना देते हैं। तो भगवद गीता में ब्राह्मणों का क्या वर्णन किया गया है, ब्राह्मणों के क्या गुण होते हैं, ब्राह्मण किसे कहा जाता है। कलयुगी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं, जो रियल ब्राह्मण है वो क्या होता है। समो दमः तपः शौचम क्षांतिराज्यमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये भगवद गीता के अनुसार है, और भागवतम के अनुसार कुछ ऐसा ही है श्लोक, बस केवल संतोषः ज्यादा है। समो दमः तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्यम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। और जिस तरह का श्लोक भगवद गीता में है, वैसा ही श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कि समो दमः तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम मद भक्ति दया सत्यम। अब देखिए स्कंद आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं। मद भक्ति, पहले संतोष लिखा है, ज्ञानम विज्ञानम लिखा है, ज्ञानम दयाच्युत अच्युत आत्मत्वम, जो भगवान अच्युत को अपना समझता है, उसी का ट्रांसलेशन आगे के स्कंद में कर दिया कि जिसमें भगवान के प्रति भक्ति है। तो वैसे बहुत सारे गुण होते हैं, समः दमः तपः शौचम, हमेशा पवित्र रहना, हमेशा सेटिस्फाई रहना कि जो भी वस्तु प्राप्त हो जाए हमारे भाग्य के अनुसार तो उसी में सेटिस्फाई रहना, और सरल स्वभाव रहना, तो ये सब लक्षण है। लेकिन सत्यम 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 ये सब में आता है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब में क्या लिखा गया, सत्यम 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 सत्यम। इसका अर्थ है कि झूठ बोलना अलाउड नहीं है, और हम लोग प्रतिदिन झूठ बोलते हैं।
तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं बताइए? वर्णाश्रम, श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि हमारे गुरु जी, इसका अर्थ है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते थे जो वर्णाश्रम के आधार पर हो। लेकिन बताइए कि हम फिर किस श्रेणी में आते हैं? यदि हम प्रतिदिन झूठ बोलते हैं तो हम लोग किस श्रेणी में रखे जाने चाहिए? हम तो शूद्र भी नहीं है ना। तो अब आगे के लक्षणों का हम क्या वर्णन करें? शूद्र का वर्णन कर देते हैं सीधे, जो हमेशा कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम इतने तो गुण आ जाएं हमारे अंदर, दूसरों के लिए नहीं, हम अपने लिए कहते हैं कि कम से कम इतने तो गुण हमारे अंदर आ जाएं। इसलिए हम कहते हैं शूद्रस्य सन्नति शौचम, शूद्र वो है। लोग कहते हैं कि अरे अब ब्राह्मण लोग दूसरों को शूद्र बना दिए सेवा करने के लिए, है ना, डोमिनेट करने के लिए। लेकिन शूद्र के लक्षण क्या हैं? देखिए शूद्र कितना उत्तम होता है। शूद्रस्य सन्नति शौचम, जो हमेशा पवित्र रहता है। शौचम का अर्थ क्या है? जो पवित्र रहे। शौचम शब्द बहुत प्रसिद्ध है। तो जो प्रतिदिन नहाता है, स्नान करता है, पवित्र रहता है। ब्राह्मणों के लिए कहा गया 3 बार स्नान करना, 3 बार गायत्री करना और शालिग्राम शिला की पूजा करना, ये ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो शौचम, जो हमेशा पवित्र रहता है, वो शूद्र है। सेवा स्वामिन् मायया, जो अपने स्वामी की सेवा करे, पूरी निष्ठा के साथ सेवा करे। उनका स्वामी कौन होता है? या तो वैश्य है, या क्षत्रिय है, या ब्राह्मण। ब्राह्मण का स्वामी कौन है? भगवान। अपने स्वामी की जो सेवा करे, जो अपने स्वामी की सेवा करे, वो कौन है? शूद्र है। सेवा स्वामिन् मायया अमंत्रज्ञो हयस्तेयम, क्योंकि शूद्र को मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि शूद्र जनेऊ धारण नहीं कर पाता है। तो वो बिना मंत्र पढ़े अग्नि जला के उसमें हवन करे, बिना मंत्र। अमंत्रज्ञो हयस्तेयम सत्यम, और सदैव सत्य बोले। गोवी प्ररक्षणम, जो गाय की रक्षा करे। वैसे के गुण आप देखेंगे भगवद गीता में, तो क्या है? जो ब्राह्मण की रक्षा करे, जो गाय की रक्षा करे। क्या? कृषि गौ रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजन परिचर्यात्मकम कर्म। तो फिर ये आगे शूद्र का होगा। कृषि गौ रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के कर्म क्या है? कि कृषि करे, खेती किसानी करे, आम इत्यादि खरीदे, उसमें कुछ उगाए, और गौ की रक्षा करे, ब्राह्मणों की रक्षा करे। तो ये लक्षण होते हैं, ये गुण होते हैं। तो ऋग्वेद में मंडल 10 में सूक्त 90 और ऋचा 12 में ऐसा कहा गया है। ये कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें आपका एक प्रश्न बनेगा, इसका हम पहले ही उत्तर दे देंगे। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजन् यः कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यागं शूद्रो अजायत। तो इसमें कहा गया है, इस ऋचा में कहा गया है कि ब्राह्मण कहाँ से आए? भगवान के मुख से निकले। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहुराजन् यः कृतः, और बाहु से कौन निकला है? क्षत्रिय निकले। बाहुराजन् यः कृतः उरु तदस्य यद् वैश्यः, और भगवान के उरु से वैश्य निकले। पदभ्यागं शूद्रो अजायत, और भगवान के चरण कमलों से शूद्र निकले। तो अगर ये निकल ही गए, पहले से ही निकल गए, तो फिर कैसे आप कहते हो कि कर्म के आधार पे? अभी तो निकल ही गए हैं, आ ही गए हैं, है ना। तो गुण कर्म विभाग ऐसा कैसे? तो पहले से अपना गुण लेकर आएंगे, एक प्रश्न बनता है ना। तो एक बहुत प्रसिद्ध आजकल के एक बाबा हुए हैं बागेश्वर धाम के, एक धीरेन कृष्ण शास्त्री। वो पहुंचने के पहले उसकी चिट लिख देते हैं कि कौन आने वाला है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बीमारी है, इसको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके उपाय वो लिख के बता देते हैं।
तो जो वहाँ पर आए हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो बता देते कि ये व्यक्ति यहाँ से आया है, ये इनका नाम। तो एक सिद्धि है, और भगवान सिद्धिपति है। सारी सिद्धियाँ किससे निकलती है? भगवान से। तो यदि ये निकल रहे हैं तो भगवान को भी सब मालूम है, ये शूद्र बनेंगे, ये वैश्य बनेंगे, ये ब्राह्मण बनेंगे, ये क्षत्रिय बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो 4 आश्रम है वो भी भगवान के शरीर से निकले। जो ब्रह्मचारी है वो कहाँ से निकला है? हृदय से निकले हैं, भगवान के हृदय से निकले हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी बहुत श्रेष्ठ होते हैं ना, ब्रह्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, ब्रह्मचारियों की सेवा करना चाहिए, है ना? तो ब्रह्मचारी कहाँ से निकलते हैं? भगवान के हृदय से निकलते हैं। और जो सन्यासी हैं वो भगवान की छाती से निकलते हैं, वक्षस्थल से निकलते हैं। तो हृदय में वक्षस्थल में अंतर है। तो हृदय से एक निकलता है और एक वक्षस्थल से निकलता है। श्लोक है वो ढूंढ के बता देंगे आपको, श्लोक में लिखा गया है। और यदि आप 7वां स्कंद पढ़ेंगे, 7वें स्कंद में यदि ये गुण पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है। तो 7वें स्कंद में आप पढ़ लीजिए इसके परपट में, तो प्रभुपाद जी ने एकदम एग्जैक्टली बताया है कि ये कहाँ से निकलते हैं। और जो आपने सुना डार्विन की थ्योरी का, हमने आज उसका चैप्टर जो क्लोज किया वो भी श्रील प्रभुपाद जी ही बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ के वो हमने आपको केवल बता दिया, उनकी बातों को आपको बता दिया है, हमारी कोई रिसर्च नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने सब भगवत गीता में ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान ने ही ये रचना की है। गुण की रचना भी भगवान ने की है। ये गुण और कर्म ये जो बताए गए हैं ये कहाँ लिखे गए हैं? शास्त्र में लिखे गए हैं, भगवत गीता में, भागवतम में। और भगवत गीता के में धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे, अच्छे अच्छे गुणों को पढ़ेंगे, तो कई जगह ये भी लिखा गया है कि भगवान ही अच्छे अच्छे गुण हैं। ये जो गुण हैं यही भगवान है। तो यदि हम अपने अंदर किसी अच्छी क्वालिटी को लेकर आते हैं तो हम भगवान का चयन करते हैं, हम भगवान को अपने अंदर धीरे धीरे हम बसाते हैं, भगवान को हम अपने अंदर उन क्वालिटीज़ के रूप में लेकर आते हैं। तो अलग अलग निर्देश दिए गए हैं ब्रह्मचारी के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए, और 4 वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए अलग अलग निर्देश शास्त्र में दिए गए हैं। तो जिनका पालन यदि अच्छे से किया जाता है तो अतः कुंभिर द्विजा श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागसा, केवल उन वर्ण के, उन आश्रम के गुणों का पालन करते करते कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, 3.35 में कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्। और इसी तरह का सेम एग्जैक्ट यही श्लोक आपको कहाँ मिलेगा? 18वें अध्याय में भी मिलेगा। इसी तरह का एक श्लोक जिसमें पहली लाइन बिल्कुल एक जैसी है। स्वधर्मे निधिनम श्रेय, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है लेकिन दूसरे का धर्म बड़ा खतरनाक है। पर धर्म भयावह। तो मनुष्य जब ये पालन करता है बढ़िया से, वर्णाश्रम का पालन करता है, तो इस संसार को क्या कहा जाता है? पवर्ग कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, ये संसार पवर्ग है और भगवान का धाम क्या है? अपवर्ग है। ठीक है, पवर्ग है, भगवान का धाम क्या है? आ गया समझ में? अब कौन बताएगा कि पवर्ग क्या है? सॉरी, पवर्ग है क्या? Who knows what is power? अभी यहाँ पे तो सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, अभी हिंदी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पवर्ग है क्या। तो इंडिया में हिंदी भी पढ़ाई जाती है ना। तो पवर्ग, अभी तो आप सीधे ABCD से लेके Z तक पढ़ लिया, लेकिन इंडिया में अलग अलग वर्ग होते हैं। आ वर्ग, आ इ ई उ ऊ, का वर्ग, का खा गा घा गा, ये का वर्ग। तो वैसे ही पावर्ग होता है, पा फा बा भा मा, ये पावर्ग है। पा फा बा भा मा, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एक्चुअली। आचार्यगण कमेंट्री करके बताते हैं कि पावर्ग है क्या। पा का अर्थ क्या होता है? पा का अर्थ होता है परिश्रम, हार्ड वर्क।
बहुत हार्ड वर्क, परिश्रम। तो इस संसार में हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के रोटी सब्जी नहीं मिलेगी, है ना। परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। पा से क्या है? परिश्रम। पा, फा, फा से उसका कुछ हमें फल प्राप्त होता है, कुछ फ्रूट मिलता है। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो कुछ सैलरी मिलती है हम लोगों को, कुछ वीकली कुछ हमें प्राप्त होता है। पा, फा, ब, लेकिन सब व्यर्थ है, वो काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कफन में जेब नहीं। तो ब से क्या होगी? हाँ जी, ब से क्या था? व्यर्थ, बेकार है। ब या ब? ब। हाँ, वो है पा, फा, बा, लेकिन व्यर्थ है। कमेंट्री में लिखा गया व्यर्थ है, बेकार है। चलिए हिंदी में समझिए, बेकार है। क्यों बेकार है? क्यों बेकार है? Because pockets नहीं है। कफन में पॉकेट्स नहीं है, कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, है ना। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट मरा तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे हाथों को ऐसे दिखा दिया जाए। 32 इयर्स में मर गया, बहुत शक्तिशाली। मेरे हाथों को ऐसा लटका दिया जाए अर्थी में। क्यों? कि देखो मैंने कितना विश्व के लोगों को कितना परेशान किया, कितना धन लूटा, लेकिन क्या मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ? कुछ नहीं लेके जा रहा। और उसने कहा मेरी अर्थी में उन लोगों को लगाना जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं। क्यों? मैं केवल 32 इयर्स का हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर्स मुझे बचा पाया? मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु सर्वहर्षा, सब कुछ कर लेती है। तो बेकार है, कितना भी हम कमा लेंगे लेकिन किसी काम का नहीं है। इसीलिए पूरा जीवन कमाते कमाते, धन कमाते कमाते नहीं बिताना चाहिए, बल्कि यदि कुछ कमा लिया है, हो गया है, तो फिर धर्म कार्य करना चाहिए। तो पा, फा, बा, भा, भा का अर्थ क्या है? भय। इसीलिए लॉक इत्यादि बने हुए हैं। आप किसी घर में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लगवाते हैं? लॉक लगवाते हैं। और मनुष्य को जानवरों से भय नहीं है, मनुष्यों को मनुष्य से भय है। किससे भय है? जिनको हम लोग सोचते हैं ना ये हमारे अपने हैं, ये हमारे वो हैं। अरे एक घर में लोग अपने अपने रूम में लॉक लगाते हैं। क्यों? जिस घर में जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली है, साथ में रहते हैं। उस सबके घर में, सबके रूम में अलग अलग लॉक होता है। क्यों? उनको डर है कि ये देवरानी ये निकाल लेगी, हमारी जेठानी ये निकाल लेगी, सास निकाल लेगी, सास को लगता है बहू निकाल के ले जाएगी। है ना। तो मनुष्यों कितना प्रेम बाहर से जता लें, दूसरों के सामने बहुत प्रेम जता लें, बहुत नजर उतार लें, कुछ कर लें, लेकिन डर है। अकेले में बहुत दिन भर सोचते रहते हैं कहीं ये मेरा ये ना, कुछ गुम जाए तो तुरंत अपने परिवार वालों में किसी को ब्लेम कर देते हैं। ये तो पा, फा, बा, भा, मा, और अंत में क्या है? मृत्यु है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, एज श्योर एज डेथ। तो इसी बात को हम समझाने के लिए आपको बताते हैं कि इस संसार में लोग क्या करते हैं। इस संसार में एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, ठीक है? पूछते फिर बाद में पूछिए। एक व्यक्ति था, एक आदमी था, उसका नाम था मधुबिंदु। क्या नाम था? मधुबिंदु। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उसके पीछे एक पागल हाथी लग गया। पागल हाथी लग गया, मैड एलिफेंट उसके पीछे। तो मैड एलिफेंट आया तो सीधे मारने के लिए भागा, वो भागने लगा और भागते 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 अब कहाँ जाए, जहाँ जाता था वो मैड एलिफेंट उसके पीछे आता था। तो एक कुआं था, एक वेल था आगे, और उसके ऊपर से एक टहनी निकली थी, एक ब्रांच थी, एक शाखा थी। तो कूद गया और जाके उसने उस ब्रांच को पकड़ लिया और उसमें लटक गया। तो उसने बोला अब हाथी कैसे आएगा, अब तो एक कुआं है बीच में, अब हाथी कैसे आएगा, हाथी नहीं आ सकता है। तो हाथी भी गया और जाके पेड़ के किनारे खड़ा हो गया। लेकिन हाथी आ नहीं सकता था। तो उसने कहा हाथी तो खड़ा है, ये तो भाग नहीं रहा है। तो उसने शाखा को देखा कि कितनी मजबूत है, लंबे समय तक इसमें पकड़े रहना पड़ेगा, कितनी मजबूत है देख लूं। तो उसने देखा, इस तरफ से देखा, अंत में तो शाखा के उस ब्रांच के
एट द एंड वहाँ पे 2 चूहे बैठे थे, 2 rats बैठे हुए थे, and they were cutting the tree slowly. एक था काला और दूसरा था सफेद, याद रखना, एक था काला दूसरा था सफेद, एंड वो लोग काट रहे थे धीरे 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 धीरे, उस टहनी को काट रहे थे। तो उसने देखा कि अरे ये तो टहनी तो गिरने वाली है, तो नीचे देखो उस कुएं के अंदर एक कोबरा बैठा हुआ था। सांपों में भी कौन बैठा था? कोबरा बैठा हुआ था। तो जोर से पकड़ लिया उसने, नहीं अब तो गिरना नहीं है, जितनी देर हो सके पकड़ा रहा हूँ। अब उसने देखा कि अब वो जो हाथी था, तो हाथी अब देख रहा है कि ये आ नहीं रहा है, तो हाथी अपने सिर से वो पेड़ को हिलाने लगा। अब पेड़ को हिलाने लगा तो डर गया, तो उसने सोचा मैं ऊपर की टहनी में छलांग लगा दूं। तो ऊपर देखा तो ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, बीज, हनी बीज का छत्ता लगा हुआ। तो वो तो डर गया, ये क्या हो रहा है, सब तरफ मृत्यु है। और जब हाथी पेड़ को हिला रहा था तो मधुमक्खियां डिस्टर्ब हो गई। तो जब मधुमक्खियां डिस्टर्ब होती हैं तो क्या 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 होता है, जो पास में रहेगा उसको ही काटेंगे। तो काटने लगी इसको मधुबिंदु की, और मधुबिंदु जैसे करंट लगता है ना, ऐसे करने लगा। तो तब तक वो कर रहा था, तब तक एक बूंद शहद उसके मुंह में गिरा, एक बूंद शहद, और उसने शहद चाटा। दिस इज वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। शहद उसने चाटा, अब वो सब भूल गया। शहद जब उसके मुंह में पड़ी तो सब भूल गया कि वहां पे हाथी है, 2 चूहे इस टहनी को काट रहे हैं, नीचे कोबरा है, सब भूल गया। और तब तक बाजू में एक भक्त आए, रसिक प्रभु जी आए बाजू में, और प्रभु जी ने कहा कि अपना हाथ दो, मैं निकाल लेता हूँ, मैं निकाल के तुम्हें पार लगा देता हूँ, इस तरफ आ जाओ, हाथ दे दो। तो उसने कहा कि अरे ऐसे कैसे आ जाऊँ, अभी तो वो ऊपर देख रहा है कि दूसरे शहद की बूंद गिरेगी, और शहद की बूंद गिरेगी तो उसका भी मैं आस्वादन करूँगा। तो हम लोगों की हालत ऐसी है ना, हम लोगों की हालत ऐसी ही है। अब कैसे है ये पागल हाथी, कौन पीछे लगा था? पागल हाथी। पागल हाथी कौन है? पागल हाथी है हमारे कर्म, जो हमें दौड़ा रहे हैं इस संसार में। हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों के कारण हम दौड़ रहे हैं, और आके हमने मनुष्य जन्म स्वीकार कर लिया है। नीचे कोबरा है, कोबरा क्या है? मृत्यु, as sure as death, गिरेगा एक दिन और कोबरा खाएगा, है ना? तो कर्मा है, देख रहे हैं हमें, भाई जो करोगे वो तो भोगना पड़ेगा। नीचे क्या है? मृत्यु है, और ये जो डाल है ये हमारी उम्र है, ये ब्रांच। 2 चूहे हैं, क्या रंग है उनका? एक वाइट एक ब्लैक, एक दिन है और दूसरा रात। एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात। तो क्या कर रहे हैं? हमारी आयु को का, और हम लोग क्या अपना बर्थडे मनाते हैं कि हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग इतने बड़े हो गए, है ना? हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन क्या हो क्या रहा है वहां पर? वो चूहे हमारे जीवन को काट रहे हैं, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक रात, वो काट रहे हैं। और ऊपर वो जो मधुमक्खियां बीच बीच में काटती हैं, ये हमारे डेली के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं डेली। किसी को अपने स्कूल में प्रॉब्लम है, किसी को टीचर को स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को टीचर से प्रॉब्लम है, बॉस को, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, जो लोग काम कर रहे हैं उसको बॉस से प्रॉब्लम है, कोई हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, सबको नहीं हम कह रहे हैं, किसी किसी को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में रहेगा ही। और तब तक हरे कृष्णा वाले भक्त कहते हैं कि आओ हम तुम्हें उठा लेंगे, तो हम क्या कहते हैं? आई एम वेटिंग फॉर द वीकली सैलरी। वो जब एक सैलरी आके गिरती है ना फ्राइडे इवनिंग हमारे अकाउंट में, हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सारा कष्ट सब भूल जाते हैं। तो सैलरी आ गई, अच्छा देख के लगता है, और फिर
जब फिर अकाउंट खाली हो जाता है तो फिर से तब तक एक और आ गया। तो ये इस संसार में हम सबकी हालत है। तो यदि कोई वर्णाश्रम का बढ़िया से पालन करता है लेकिन भगवान को त्याग कर, यदि भगवान का कोई ध्यान नहीं रखता है, अपने वर्ण का पालन करे, आश्रम का पालन करे, लेकिन यदि भगवान सेंटर में नहीं है तो ये केवल स्वधर्म है और वो पवर्ग में है, पा फा बा भा मा। लेकिन अपवर्ग, उसके एकदम अपोजिट क्या है? अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ क्या है? भगवान ने जन्म लिया था वैकुंठ के रूप में, संसार में भगवान आए थे, एक अवतार लिया था भगवान ने एक मनवंतर में, है ना, पूरे वैकुंठ धाम के साथ आए थे। तो वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? हाँ, बिना दुख के, जहाँ पे कोई मिजरीज नहीं है, तो वो वैकुंठ होता है। तो यदि कोई वर्णाश्रम का पालन करता है लेकिन संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को बीच में रखकर, है ना, जितने भी वर्ण है, आश्रम है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम प्रयत्न करते हैं, दूसरों को भगवान से जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, ना, जैसे बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, चित्रपति प्रभु सीता माता जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, विष्णुप्रिया माता जी भी एकादशी का प्रोग्राम अपने घर में करते हैं, या मंदिर में प्रोग्राम प्रभु जी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इन्होंने भी गृहस्थ धर्म लिया है, लेकिन अपने गृहस्थ धर्म में रहते रहते दूसरों के विषय में सोचते हैं। तो दूसरों के विषय में कोई सोचता है, लेकिन क्या सोचता है दूसरों के विषय में? ये नहीं कह रहे इसको मैं कपड़े दे दूं, इसको मैं खाने को दे दूं, इसको मैं इतना पैसा दे दूं, ये नहीं। क्या सोचता है कि कैसे मैं इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त कर दूं। तो वो व्यक्ति वास्तव में ठीक ठीक वर्णाश्रम का पालन करता है। प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बनाई है और प्रभुपाद जी का यही विजन था। प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि हर तरह के लोग यहाँ पर आएं। ये ब्रह्मचारी भी आते हैं। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए, और एक होता है निवृत्ति मार्ग। दो मार्ग बताए गए। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि ब्रह्मचारी सीधे सीधे संन्यास ले लेते हैं, तो वो है निवृत्ति मार्ग। और एक है प्रवृत्ति मार्ग, जहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक नियत सेंस ग्रेटिफिकेशन बताया गया है शास्त्र में कि ठीक है, इन विधि विधानों का पालन करते करते और इस तरह से अपना जीवन जियो और साथ साथ में भगवान की भक्ति करते रहो। तो समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में कि वर्ण आश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तदोष कारणम। कि वर्णाश्रम में रहने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि मनुष्यों के द्वारा भगवान की पूजा की जाए, और जो भगवान की पूजा इत्यादि नहीं करता है वर्णाश्रम में रहकर, उसका क्या होता है वो भी चैतन्य चरितामृत में लिखा है। चारी वर्ण श्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म कर लियो से रौरव पड़े मजे। तो रौरव नाम के नरक में जाते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है नरक के, तो उसमें से एक नरक का नाम है रौरव। तो हमें यहाँ पर जब आना है तो हमें कुछ सीखना है। वी हैव टू लर्न समथिंग एंड देन वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ। व्हाटएवर वी कैन अप्लाई, वी जस्ट हैव टू अप्लाई slowly, gradually. We have to advance in spiritual life. तो यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? जैसे महाराज ने अपने आश्रम को सफल किया। तो कदम्ब कानन स्वामी महाराज, जिन्होंने 69 वर्ष की आयु में देह त्याग किया या भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। 1953 में जिनका जन्म हुआ था, और ये पहली बार वृंदावन गए थे, भारत गए थे। क्यों भारत गए थे? आत्म साक्षात्कार के लिए। कुछ लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार की खोज करते हैं, सब कोई नहीं करता है। भक्ति चारू महाराज ये भी विदेश में थे, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार की खोज कर रहे थे। श्री प्रभुपाद जी ने। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बहुत क्वालिफाइड सन्यासी, साइंटिस्ट हैं, वो श्री प्रभुपाद जी के पीछे पीछे आ गए, खोज करते हुए जीवन
कि सत्य की खोज करते हुए। इसी तरह से राधानाथ स्वामी महाराज कहाँ पहुँचे? इंडिया पहुँचे। तो कदम कानन स्वामी महाराज भी इसी तरह से इंडिया गए थे और इन्होंने 1978 में वृंदावन इस्कॉन का मंदिर ज्वाइन किया था डायरेक्ट, है ना। कितना बड़ा सौभाग्य मिला, देखिए डायरेक्ट वृंदावन में गए और इस्कॉन का मंदिर ज्वाइन कर लिया था, नए थे। फिर बाद में इन्होंने जय अद्वैत महाराज जी से इन्होंने दीक्षा ली। तो ये किसके डिसाइपल हैं? जय अद्वैत स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, जो श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। तो उनसे इन्होंने दीक्षा ली। कुछ ही समय के बाद 79 में दीक्षा ली इन्होंने, और बाद में 97 में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। काफ़ी टाइम 90 से 95 तक वृंदावन टेम्पल में ही वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे और उस तरह से डिवोटीज को सर्व कर रहे थे। और महाराज के पास नए आइडिया थे, तो वो हमेशा अपने नए आइडिया से इस्कॉन को सर्व करने की कोशिश करते थे। वो ऐसी जगह जाते थे जहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं प्रचार के लिए, और वहाँ जाकर नए तरीके से वो प्रचार करते थे, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छी बुक भी लिखी हैं, कई बुक लिखी हैं, उनके हमने नाम भी लिख के रखे हैं। तो एक बुक उन्होंने लिखा है डिवोशनल सर्विस, वंडरफुल कृष्णा, और अंडर द डिजायर ट्री, गोलोक प्रेमधन, कीर्तनिया सदा हरि, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और इस तरह प्रचार करते करते जीवन में उन्होंने क्या किया है? कीर्तन किया है बहुत बढ़िया से, भागवत भी करते हैं, दूसरों को ज्ञान भी देते हैं, और कीर्तन करके, कीर्तन सबको पसंद है, कीर्तन सबको अच्छा लगता है, तो कीर्तन करते करते उन्होंने धीरे धीरे वृंदावन में देह छोड़ा। तो वृंदावन में देह छोड़ना आसान नहीं है, ये हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अपने धन इत्यादि से कोई वृंदावन में देह त्याग नहीं कर सकता है कि धन है, अब चले जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में अपार्टमेंट में रह के वहाँ पे हम अपना देह त्याग करेंगे। अंत में एम्बुलेंस आके आपको दिल्ली ले जाएगी, वहीं देह तो लेकिन महाराज में भक्ति की शक्ति है। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब क्या हुआ, है ना, सोचने वाली बात है। ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है कि उनके गुरु महाराज उनके पास हैं और वो जप करते रहे, गुरु महाराज जप कर रहे हैं और अनेक डिवोटी नाम संकीर्तन करें। ये किसके लिए पॉसिबल है? किसको ये सौभाग्य मिलता है? कोई साधारण व्यक्ति, कोई शरीर छोड़ने वाला हुआ, कोई जाएगा भी नहीं उसके पास, लेकिन कोई डिवोटी शरीर छोड़ने वाला हुआ तो लोग बार बार जाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे, बार बार पूछेंगे, है ना। पहले तो प्रयास करेंगे कि वो ठीक हो जाए, और यदि नहीं होते हैं तो उनकी मृत्यु को सफल करेंगे ना। आर्ट ऑफ डाइंग, तो महाराज को पता था कि कैसे मरना है, क्या है आर्ट ऑफ डाइंग। तो वो हम लोग को सीखना चाहिए, हमारे बस में नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान ऐसी सुविधा करते हैं कि अनेक डिवोटी कीर्तन पार्टी कीर्तन कर रही थी, उनके गुरु महाराज वहाँ पर थे। और जब अभिजीत मुहूर्त आया, कौन सा मुहूर्त आया? 12:06 में अभिजीत मुहूर्त आया, जिस मुहूर्त में भगवान प्रकट होते हैं, उस मुहूर्त में उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया, भगवान की शाश्वत लीला में प्रविष्ट हो गए। तो ये होती है संन्यास की सिद्धि। अपने धर्म का पालन करके कोई मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ भी यदि अपने धर्म का पालन करे तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी तो कर ही सकता है। ब्रह्मचारी, यदि कोई अपने जीवन में ब्रह्मचारी रह जाए एकमात्र, तो 99% काम हो गया, 1% बचा है, तो थोड़ा सा भजन करना है, तो सेंस कंट्रोल कोई कर ले तो उसने 95% 99% काम कर लिया। और वानप्रस्थ में क्या किया जाता है? पति पत्नी दोनों जाते हैं और जाके भगवान का भजन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने धर्म में रहकर, अपने अपने वर्ण में रहकर, अपने अपने आश्रम में रहकर, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि इस कलयुग में बहुत मुश्किल है ना, इस कलयुग में इतनी सारे भटकाने वाले विषय हैं, तो बहुत मुश्किल है सबके लिए। तो इसीलिए हरि नाम का जप करते हुए प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में रहकर, और क्या समझकर, नाहम विप्रो
हम क्या हैं? ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। तो अपने आप को क्या समझ के, है ना, हम्बल बनना है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लोगों को हम्बल बनना है। अगर ज्ञान के साथ साथ हमारा सीना जो ऐसे निकलने लगे, मतलब प्रॉब्लम है, तो मतलब नहीं जाएंगे, है ना। तो घास जो है वो दब जाती है, कोई पैर रखता है दब जाती है, कोई आदमी जैसे आज आगे जाएगा फिर से ऐसे खड़े हो जाएगा, लेकिन पेड़ खड़ा रहता है ऐसे करके। और साइक्लोन आता है और वो जड़ सहित पेड़ को काट के फेंक देता है। घास उखड़ती है, घास नहीं, क्योंकि घास ऐसे बैठ जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हम लोगों को हम्बल बनना है। कोशिश करना है कि हमारे अंदर का जो ईगो है धीरे धीरे समाप्त होता जाए। हम हमेशा कहते हैं, अभी आप लोगों को आगे जाके बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे आप सभी को, है ना। आप सभी भक्ति शास्त्री करेंगे, भक्ति वैभव करेंगे, बहुत सारे कोर्स करेंगे, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट करेंगे। जैसे जैसे सर्टिफिकेट आपको मिलते जाते हैं वैसे वैसे आपको हम्बल होते जाना है, और हम्बल और हम्बल और हम्बल। तो आप आसानी से निकल जाएंगे इस संसार से, बहुत जल्दी से शीघ्रता से निकल जाएंगे। हम सभी निकल जाएंगे और हमें भी हम्बल होना है ना। तो जब हम लोग कहते हैं तो अपने लिए भी कहते हैं कि हमें भी, है ना, क्योंकि ये क्या है? श्रवण कीर्तन है ना। श्रवण कीर्तन आगे के श्लोक में इसको बोल के हम खत्म करेंगे, बहुत छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन देके। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यः। इसीलिए कंक्लूजन क्या है? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, भगवान को अपने हृदय में बैठाल के भगवान का भजन करते हुए, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान के बारे में कहना है, भगवान का कीर्तन करना है। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कौन बताए? कीर्तन का अर्थ क्या होता है? हाँ? बताइए जोर से बताइए। भगवान का नाम भजना। हाँ। हाँ। भगवान के कीर्तन का अर्थ होता है नाम, गुण, रूप, लीला का प्रसार करना, वर्णन करना, यही कीर्तन है। केवल नाम नहीं, नाम, गुण, रूप, लीला, इन सब का प्रचार प्रसार करना, इसको कहा जाता है कीर्तन। हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं, यही कीर्तन का अर्थ है। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च आपके गुरु जी भी बताते हैं। हम लोगों में अपना भाव होता है ना, हमारे गुरु जी, है ना, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, हमारे गुरु हैं, सबके गुरु जी, क्योंकि सभी को शिक्षा देते हैं ना, सभी के शिक्षा गुरु, सभी के दीक्षा गुरु हैं। लेकिन हम लोगों में एक वो है पॉजिटिवनेस है ना, हमारे गुरु जी प्रेम है, प्रेम का भाव रहता है भक्तों में, तो अच्छा भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से हमें भगवान का पूजन करना, और कैसे? नित्यता, हमेशा करना है, हर समय करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतनी शांति से बढ़िया से सुना इस विषय को। और आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। बहुत तरह का फियर होता है। हाँ, बहुत तरह का फियर होता है, इससे कैसे बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप में से कौन इसका उत्तर बताना चाहेगा? इसका उत्तर भी भगवान ने पहले स्कंद में दिया है, पहले स्कंद में ही इसका उत्तर है। थोड़ा गैस भी कीजिए, क्योंकि पहले या लास्ट सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। हाँ, तो सिद्धि हो गई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, साधना भी है, सिद्धि भी है, तो डेफिनेटली सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और बताइए, शोक मोह भयापह कहा गया है ना एक जगह भागवत में, शोक मोह भयापह। तो जो सूर्य है, सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है,
तो एक एक दिन करके हमारी आयु को छीन रहा है, जिस तरह से आपने एग्जाम्पल के द्वारा सुना है ना, कि उद्यनश्चम तयन्निसौ यस्ते तक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्ता है। जो लोग अपना समय उत्तम श्लोक वार्ता भगवान की कथा में बिताते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान की केवल कथा सुनने मात्र से, जैसे ही कोई कथा सुनता है भगवान की, है ना, और ऐसा नहीं कि कथा सुन के पूरा कर दिया है, ऐसा नहीं है, केवल कथा सुनना शुरू किया है। प्रथम स्कंद में लिखा है यस्य वै श्रूयमाणायाम। श्रूयमाणायाम एक क्रिया है, एक क्रिया चल रही है। ऐसा नहीं कि पढ़ के पूरा खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कि पूरे 12 स्कंद पढ़ लिए हैं, केवल शुरू किया है और पढ़ रहा है कोई श्रीमद् भागवतम को, तो एक क्रिया हो गई कि कोई आदमी पढ़ रहा है श्रीमद् भागवतम। यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। श्रूयमाणायाम पढ़ रहा है या सुन रहा है। श्री प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना भी सुनना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन में कहा है, उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है, तो सुन रहे हैं, या गुरु के मुखारबिंद से, भक्तों के मुखारबिंद से सुनते हैं। जब आप श्रूयमाणायाम सुनने की क्रिया जब चलती है, लेकिन किसके विषय में? भगवान के विषय, कृष्ण के विषय में। कृष्णे परम पुरुषे, भगवान के विषय में जब सुनते हैं तो क्या होता है? शोक मोह भयापहा, व्यक्ति का सारा शोक धीरे धीरे दूर हो जाता है, सारा मोह, सारा अटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप चला जाता है। अटैचमेंट जो जा नहीं सकता है वो चला जाता है केवल सुनने मात्र से, है ना। और भय, फियर, किसी भी प्रकार का फियर होगा वो भी भगवान की कथा सुनने से समाप्त हो जाता है। इसको कई लोग किसी दूसरे तरह से आपको समझा सकते हैं, लेकिन यही मुख्य सूत्र है कि जब भगवान के बारे में सुनेंगे, यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसः, आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी और शोक मोह भयापहा। हमें बहुत डर लगता था पहले, कई सपने आते थे और हम डर जाते थे, कई प्रकार के डरावने सपने आते थे और हम डर जाते थे। तो लेकिन भगवान का भक्त बनने के बाद क्या हुआ कि कभी कभी सपने आते हैं और मुझे पता चलता है कि स्वप्न में हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई भूत प्रेत आ गया है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई चोर आ गया है, किसी गाड़ी के पीछे हैं, या दब गए हैं, या उठ नहीं पा रहे हैं, तो मुंह से क्या निकलता है? पूरा विश्वास है भगवान में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सपने में ऐसा होता है, महामंत्र निकलता है, महामंत्र निकलता है, हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है, और डर नहीं लगता है। पहले डर लगता था कि अरे यार, कभी कभी इस क्रिया को दाबन कहा जाता है। किसी का हाथ यदि ऐसे रख जाए, चेस्ट के ऊपर हाथ रख, अब सो जाए ऐसे रख के, तो दाबन कहते हैं। तो आपको डरावने सपने आएंगे, यहीं पे भगवान है, यहीं पे आत्मा रहती है, तो ये हाथ ऐसे रहते हैं, तो कभी कोई सपने आते हैं। डरावने सपने का अर्थ है कि आपको ऐसा भी सपना आ सकता है कि कोई सर्प आपके पीछे लगा है, कोई गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है, आप गाड़ी में बैठे हैं और ब्रेक लग ही नहीं रहा है ना, ऐसा आपको सपना आएगा कि ब्रेक नहीं लग रहा है और अब हमें लग रहा है कि मतलब हम उठना चाहते हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, हमारा पैर ब्रेक को दबा ही नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है। तो ये दाबन इस क्रिया को कहते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से कई प्रकार के सपने आते हैं। तो पहले सपने आते हैं तब तो क्यों डर लगता है, लेकिन जब आप भक्त बन जाते हैं, हरिनाम करने लगते हैं, शास्त्र पढ़ने लगते हैं, विश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर, तो या तो आप श्री नरसिंह देव जी की याद करते हैं, आपके मुँह से हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है ना। और यही क्रिया यदि चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो इसी से पता चलता है कि अंत में जब आपको भगवान लेने के लिए, आपको लेने के लिए जब आपके देह छूटने लगेगा, तो भगवान लेने के लिए आएंगे और आपके मुंह से हरिनाम निकलेगा और हर प्रकार का भय खत्म हो जाएगा। तो भय है हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से, लेकिन जो भगवान के साथ है उसको किसी चीज़ से भय करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा भगवान देख लेंगे, अच्छा होगा उनकी कृपा, बुरा होगा उनकी कृपा। भक्त ये जानते हैं कि यदि हमारे साथ कुछ बुरा भी होने वाला है तो कोई बात नहीं, सह लेते हैं। क्यों? इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। हमने कुछ गलत किया है, ये उसका प्रभाव हमें मिलने वाला है, तो कोई बात नहीं, मिल जाए।
ये तो ये कैसे होता है? लेकिन धीरे धीरे जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे, और सबसे बड़ा सूत्र है वैष्णवों का संग। जब तक आप वैष्णवों के संग में हैं तब तक सब कुछ ठीक चलेगा। जैसे ही वैष्णवों का संग छूटा, नैया डूबी, धीरे धीरे नैया डूब जाएगी। हम लोग धीरे धीरे मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाएंगे। तो वैष्णवों का चरण पकड़े रहिए। चरण पकड़ने में शर्म आती है तो हाथ पकड़े रहिए सभी के लिए पकड़े रहिए, लेकिन कुछ नहीं तो उनकी धोती पकड़े रहिए, कुर्ता पकड़े रहिए निकल जाएंगे इस संसार से किसी भी तरह से, है ना? सेवा करते रहिए। और कोई प्रश्न? Hare Krishna Prabhuji, what is Arch Vigraha and why it is important to worship deities, right, at home or in temple? हाँ जी, So, yeah. अच्छा प्रश्न है आपका भी कि इसमें हमने थोड़ा सा अर्चा विग्रह के विषय में बोला, तो हम बता देते हैं। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जिस विषय में कथा की गई है उसी विषय में प्रश्न करना चाहिए। तो हमने अर्चा विग्रह के विषय में थोड़ा सा बोला था इस क्लास में कि नहीं, हमने वो बात नहीं बताई थी, लेकिन हमने ये बताया था कि 16 उपचार से भगवान की पूजा की जाती है। 8वें उपचार के समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये बताया है। तो ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है फिर बच गए आप ठीक है। एक एटिकेट है कि जिस विषय में कथा की जाए उससे ही संबंधित प्रश्न किए जाए। अगर कोई स्पीकर कह दे कि अब ये क्लास केवल इसी बारे में केवल प्रश्न उत्तर है, तब तो ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न किया जाए। तो ठीक है, मंदिर में और घर में अर्चा विग्रह करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों हम करें, किसके अर्चा विग्रह करें, किसकी पूजा करें, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सभी के लिए इसको फायदा मिलेगा इसको सुनकर। पहली बात तो ये है कि घर में हम लोग अर्चा विग्रह क्यों रखते हैं, क्यों रखें हम घर में अर्चा विग्रह? प्रभु जी तो कहते हैं मंदिर आइए, मंदिर में आके सेवा कीजिए, है ना। अब प्रभु जी बोलेंगे मंदिर में आरती की, हमने घर की आरती बाकी है, प्रभु जी हम कैसे मंदिर में आए हैं? तो घर में अर्चा विग्रह रखें तो हम क्यों रखें? You have a special connection to वहाँ पे सब लोग रखना चाहिए कनेक्शन, तो आप वहाँ भी जाके बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? स्पेशल होता वहाँ स्पेशल क्यों नहीं बना सकते मंदिर में भी जाके स्पेशल कनेक्ट, मंदिर में तो और बढ़िया से पूजा होती है, तो और अच्छे से मंदिर में जो सुंदरता, जो ड्रेसिंग जो है, वो आप खो गए होंगे वृंदावन में जाके, मायापुर में जाके क्या श्रृंगार किया। वहीं पे लग रहा होगा कि अब तो यहाँ से मायापुर से बाहर निकले ही नहीं। कनेक्शन बन गया ना, कनेक्शन बन गया, इसलिए तो आने की इच्छा नहीं हो रही है। कभी कभी आपसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वृंदावन की मायापुर, आप में से कुछ कहते हैं वृंदावन, कुछ कहते हैं मायापुर। क्यों? आपका कनेक्शन बन गया, इसलिए। कनेक्शन तो ऑलरेडी आपका बना बनाया है। घर में हम लोग क्यों अर्चा विग्रह रखते हैं? क्योंकि घर में आप भोजन बनाते हैं। घर में भोजन बनाते हैं, ऑफर करना जरूरी है कि नहीं है? ऑफर करना जरूरी है, तब तो प्रसाद खाएंगे। और नहीं तो हम लोग कहते हैं एवरीडे प्रसाद खाना चाहिए, एवरीडे प्रसाद खाना चाहिए, और फिर घर में है ही नहीं अर्चा विग्रह, ऑफर किसको करेंगे, है ना। तो इसलिए घर पे हम लोग अर्चा विग्रह रखते हैं, लेकिन घर की पूजा को मिनिमम रखते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है घर की पूजा को मिनिमम रखा जाए, इसीलिए क्योंकि आप वो पूजा करके जल्दी से मंदिर पहुंच जाएं सेवा करने के लिए। नहीं तो मंदिर में सेवा कौन करेगा? जो प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बना के रखे हैं, क्यों बनाए हैं? कि लोग वहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और लाभ उठाएं, इसीलिए तो मंदिर बनाए गए हैं। तो मंदिर में हम कहते हैं हमेशा कि घर के विग्रह के बारे में कि घर में कम से कम विग्रह को रखिए और उनके साथ अपना रिलेशन बनाइए। रिलेशन बना के बढ़िया से सेवा कीजिए, तो आपके घर में यदि कोई कमी होगी तो वो पूरा कर देंगे, आपको संभाल लेंगे आपका घर। आप घर आपका बिना कुंडी लगाए निकल गए, आप घर से बिना लॉक किए निकल गए, भगवान संभाल लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों को लगता है कि अरे मैं बिना लॉक किए आ गया, बिना लॉक किए आ गया, और कोई चोर आता है तो दरवाजा खुलता नहीं है। क्यों? अंदर से कृष्ण पकड़ के रखे। जब आप कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर आपने घर में बहुत कुछ रख लिया है, बहुत सारी डिटेल्स रख ली हैं,
तो फिर सेवा हो ही नहीं पाती। इनकी सेवा करें कि इनकी सेवा करें कि इनकी सेवा करें कि इनकी सेवा करें। एकादशी के एकादशी कर लेंगे और फिर एकादशी के बाद फिर हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, भैया तुम इसकी सेवा कर लो, बहनी तुम इसकी सेवा कर लो, प्रभु जी आप इसकी कर लीजिए, हम इसकी कर लेते हैं। और उसमें भी कभी नहीं हमारे पास टाइम नहीं, तुम कर लो, आप करो, है ना। तो इसी में समय निकल जाता है। तो मिनिमम घर में रख के कम से कम घर में यदि कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई बढ़िया से कर सकता है तो ठीक है, वो रख सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, है ना। इसलिए प्रारंभ में कम से कम रखना जरूरी है, क्योंकि घर में भोग लगा के खाना है, हमें भगवान से अपना संबंध बनाना है, भगवान के दर्शन करना है। घर में भी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान के सामने बैठ के पढ़ें, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठ के चैंटिंग करें, बार बार प्रणाम करें, तो रखना जरूरी है घर में, है ना। लेकिन घर में मिनिमम करके सब मंदिर की तरफ भागें और मंदिर में जाके सेवा करें, मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्त बनाएं, ठीक है। तो समय अधिक है, इसलिए कुछ छूटा हो तो माफ़ करना, बाकी माता जी से पूछिए, माता जी बता देंगे बाकी आपको, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा। बोले श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय, गोपाल की जय, कदम्ब कानन स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आप सभी को, भक्तों को, आप सभी भक्त लोग मौका देते हैं बार बार। प्रभु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मंदिर में प्रभु जी मौका देते हैं भगवान के विषय में, भगवान का गुणगान करने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह आरती।